हेलो मेरे बच्चों, आपने लर्न किया है इसके तीनों चैप्टर्स कि नहीं किए? नहीं किए हो तो कर लो, एग्ज़ाम है। और अब आपको मैं कंप्यूटर का कुछ पूछ रही हूँ, फर्स्ट चैप्टर, एंड यू हैव टू राइट द ओनली आंसर्स एंड सेंड मी द आंसर्स एज सुन एज पॉसिबल, है ना। My first question is, a manual machine works with, I repeat my question, a manual machine works with. My second question is, a computer works on. A computer. Next question is, a computer works on. Now another question, a calculator can, you have to write the answers. A calculator can. Now fill in the blanks, right? Question number 2 फर्स्ट हो गया, उसमें ये आपको आंसर्स लिखने थे, लाइक वन वर्ड आंसर्स, है ना। अब आपको लिखना है fill in the blanks, है ना। and dash machine can work without any human interference. A machine can work without any human interference. Which kind of machine? क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, which kind of machine can work without any human interference? Second question, what is computer? What is computer? fill in the blanks को मैंने ऐसा किया है। अब fill in the blanks था, a computer is a dash machine. So what is computer? Computer is a, आंसर लिखना है आपको बस। And my third question, machines were invented to help. Machines were invented to help. Then these must fill up. Now true or false, है ना, आपको लिखने हैं only. In earlier times there were no machines. Is it true or false? In earlier times there were no machines. Is it true or false? Second, you can make drawings using a computer. You can make drawings using a calculator. Third, in a manual machine you do not use physical efforts. In a manual machine you do not use physical efforts, right? True or false? An automatic machine does not require you to put in physical effort. An automatic machine does not require you to put in physical effort, right? This much is sufficient for today's test. Nahi, one question is, I forgot to write, ask some questions. Write question, don't write, just listen the question. What can you do on a computer? Write 2 or 3 uses of computer. What can you do on a computer? Write 2 or 3 uses of computer. Give an example of manual machine and also give an example of automatic machine. I repeat my question. Give an example of manual machine and also an automatic machine. दोनों के एग्जाम्पल लिखने हैं, मैनुअल मशीन का भी और ऑटोमेटिक मशीन का, एक एक एग्जाम्पल लिखना है आपको. नाउ इट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज टेस्ट. ओके, this after I am going to revise EVS. Okay, wait a minute. Now we will revise the chapter number 7, clothes we wear. Clothes we wear. So first of all you have to learn all the hard words. You have to know the chapter thoroughly, है ना. So you have to know what is cotton clothes, what are woolen clothes,
रेन कोट, सिल्क क्लोथ, वेवर्स क्या होते हैं, वीवर्स जो होते हैं, यूनिफॉर्म, डिस्क्राइब ऑल द थिंग, कॉस्ट्यूम्स, है ना. देन वी विल कम टू द ट्रू फॉल्स. People wear costume when they go to work. No, when they go to work they wear uniform, like you are wearing uniform, I am wearing uniform in school, right? All the people across the world wear the same type of clothes. No, आपने अलग ड्रेस पहनी होगी, अभी मैंने अलग पहनी होगी, और कहीं आपके रिलेटिव बैठे होंगे, फॉरेन में बैठे होंगे, तो उन्होंने अलग टाइप की ड्रेस पहनी होगी. तो सब कोई एक जैसी ड्रेस नहीं पहनते, हर कोई अलग अलग टाइप की ड्रेस पहनता है. ओके, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स. इन इंडिया डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस वेयर द सेम क्लोथ्स. भारत में ऐसा होता है कि इन इंडिया में आप मुंबई में बैठे हो और तमिल में बैठे हो, कहीं भी पंजाब में, तो हम सब एक जैसी ड्रेस पहनते हैं? नो, अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं. Now, multiple choice questions. The weaver weaves cotton thread into cotton clothes on his loom. कहाँ पर weaver कहाँ बुनता है कॉटन थ्रेड, धागा कॉटन का, और उससे धागे से कपड़ा कहाँ बुनता है? अपनी लूम पर. मशीन होती है वहाँ, एक फैक्ट्रीज भी होते हैं, उन्हें बोलते हैं वो लूम. लूम मशीन होती है जनरली. वी गेट फ्रॉम सिल्क वर्म. सिल्क, हमको सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वर्म, कीड़े से ना. कॉटन क्लोथ्स मेड फ्रॉम वूल कीप अस वार्म. अब वार्म फील होगा हमको, अभी हमको कोल्ड फील होगा, तो हम क्या पहनेंगे? वूलन क्लोथ्स, और उससे हमको क्या फील होगा? वार्म, है ना. फिल इन द ब्लैंक्स आपको लर्न होने चाहिए, उसके लिए आपको ये स्पेलिंग्स पढ़ते आने चाहिए, है ना. Woolen clothes are made from the hair of sheep. वूलन की वूल किससे बनता है? हेयर ऑफ शिप से. Special clothes worn by at work are called uniform. People in different parts of the world wear different clothes. In India also we wear different clothes, not only in world. We wear cotton clothes in summer. Silk comes from silkworm's cocoon. Cocoon की स्पेलिंग याद रखना, है ना, silkworm की भी. Here again they have given some true false. We wear woolen clothes in summer. We wear woolen clothes in summer. Children wear uniform to school. True. Children wear uniform to school. True. We wear clothes just to look nice. No. We wear clothes to keep us. What keep us? देखो यहाँ स्टार्टिंग में लिखा है, to protect our body from heat, cold, rain, dust, insect bites and rain. We wear clothes to protect our body from heat, cold, rain, dust, insect bites and rain. Okay, so you have to learn all these. One thing is also important. Write the names of 3 types of clothes made from the following types. This is also important. I know अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा, but page number is 42. आपको अगर एग्जाम में आया कि write 2 या 1 type or 3 type of clothes made up of cotton, silk or wool, तो you have to know it. कॉटन से क्या लिख सकते हैं हम? कुछ भी. शर्ट, फ्रॉक. सिल्क से साड़ी एंड कुर्ता. वूल से कैप, शॉल. बट फॉर दिस यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स अगेन, है ना. तो दिस मच you have to learn. And now come to the one word question answers also, है ना. Clothes make us look smart and decent. We wear different types of clothes in different seasons. We wear different type of clothes in different seasons.
Most of the fiber we use comes from plant. ज्यादा फाइबर टाइप का कपड़ा जो होता है एंड किससे मिलता है हमको? प्लांट से. ऑब्वियसली कॉटन किससे मिलता है? प्लांट से. और दूसरा सिल्क वर्म एनिमल है तो एनिमल से. मोस्ट ऑफ द फाइबर वी यूज कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट. वीवर्स weave cotton thread into clothes. Wool comes from the body hair of sheep. Silk comes from a silkworm's cocoon. Silk comes from a silkworm's cocoon. We wear different kind of clothes for different purpose. We wear different kind of clothes for different purposes. Okay. We wear silk clothes on special occasion. And कौन से? like festivals and celebration, है ना. स्पेशल क्लोथ्स पहनते हो आप. क्वेश्चन आंसर्स आर वेरी बिग. यू हैव टू लर्न. अगर आप लर्न करोगे तभी आएगा. एंड डिफाइन द फॉलोइंग. लर्न. एक मैं आपको लर्न करके बताती हूँ. यूनिफॉर्म स्पेशल क्लोथ्स worn by people to work or by children at school. आप एक्शन से लर्न करोगे तो आपको जल्दी याद आएगा. स्पेशल क्लोथ्स worn by people to work or by children at school. ऐसे. Costumes special clothes that are worn by special purposes. Costume special clothes that are worn for special purposes. These are costumes. इस तरह से आपको सब याद करना है. आ गया समझ में सबको? अब हम हिंदी का करेंगे. जस्ट अ मिनट. हिंदी में हम पहले क्विकली व्याकरण के मेन पॉइंट्स याद कर लेते हैं. भाषा द्वारा हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं. भाषा के 2 प्रकार है, मौखिक और लिखित, है ना. और भाषा हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी. ठीक है. वर्ण व वर्णमाला. वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है. अर्थात वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते. और जो वर्ण है हमारे मुंह से निकली हुई ध्वनि है. वर्ण क्या है? हमारे मुंह से निकली हुई ध्वनि क्या है? वर्ण. वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला. कितने वर्णमाला में कितने स्वर है? 11. व्यंजन 33. वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं? 11 स्वर और 33 व्यंजन. अब वर्ण के 2 प्रकार भी कह सकते हैं, स्वर और व्यंजन. क्ष, त्र, ज्ञ और श्र यह क्या है? संयुक्त व्यंजन. अम व अह यह क्या है? अयोगवाह. ठीक है. अब आते हैं हम मात्राओं पर. जब स्वर और व्यंजन एक साथ जोड़े जाते हैं तो स्वर का रूप बदल जाता है. इसे ही मात्रा कहते हैं. क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं. शब्द और वाक्य. वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं. वर्ण के मेल से ही, जोड़ने से ही क्या बनते हैं? शब्द. और शब्दों को जोड़ने से क्या बनता है? वाक्य, है ना. जिस तरह वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है उसी तरह शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है. संज्ञा. संज्ञा क्या है? संज्ञा कई तरह के नाम होते हैं. जैसे व्यक्ति के नाम, पशु पक्षियों के नाम, जगहों के नाम, चीजों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, त्योहारों के नाम, खेलों के नाम, किताबों के नाम, सब टाइप के नाम. वैसे तो सब कुछ संज्ञा है ना. तो आपको संज्ञा पता होनी चाहिए. अब हम आते हैं पाठ नीलमपरी पर. नीलमपरी हम कर चुके हैं पर फिर भी मैं एक बार आपको बता रही हूँ. मनचाहा शब्दार्थ, मन को अच्छा लगने वाला. भटकना, रास्ता भूलना. स्वादिष्ट, स्वाद से भरा. उड़न खटोला, उड़ने वाला विमान. आदेश, काम करने को कहना. आज्ञा. मिंटू कहाँ जा रहा था? मिंटू मेला देखने जा रहा था. सुंदर बगीचा किसका था? सुंदर बगीचा नीलमपरी का था. मिंटू
को भाई बहन कहाँ मिले? मिंटू को भाई बहन बगीचे के दूसरी ओर मिले। तालाब के किनारे परी ने क्या देखा? तालाब के किनारे परी ने एक बच्चे को रोता देखा। मिंटू कैसे खो गया था? मिंटू अपने भाई बहन को बिना बताए बगीचे में आ गया और खो गया। परी ने बच्चों को क्या समझाया? परी ने बच्चों को समझाया कि बिना बताए अकेले नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, मम्मी पापा के साथ ही जाना है ना? आपको याद करने हैं। अब हम आते हैं पार्ट 3, मीठा झगड़ा। बुक एक्सरसाइज आप खुद लर्न करेंगे। शब्दार्थ अकड़। अकड़ के हम बताते आज मेरे पापा मेरे लिए ये लाने वाले। अकड़ मतलब घमंड। रसीला, रस से भरा। हल्की, थोड़ी। बड़ाई, तारीफ। आज मैडम ने मेरी क्लास में बड़ाई करी, ऐसा बोलते ना। तगड़ी, खूब मजबूत। प्रणाम, नमस्कार, है ना? प्रश्नोत्तर। रसगुल्ला किससे बनता है? रसगुल्ला दूध के छेने से बनता है। अब आपको वाक्य बनाना आता होगा तो आप 3 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर याद कर सकते हो। रसगुल्ला किताब में लिखा है दूध और छेना। अब वाक्य खुद बना। रसगुल्ला दूध के छेने से बनता है। मिठाइयों का पिता कौन है? मिठाइयों का पिता दूध है। कविता में किन किन मिठाइयों की बात कही गई है? कविता में जलेबी, रसगुल्ला व रबड़ी के नाम लिए गए हैं। दूध ने खुद को मिठाइयों का पिता क्यों कहा? दूध ने खुद को मिठाइयों का पिता इसलिए कहा क्योंकि दूध व दूध से बने पदार्थों से ही मिठाइयाँ बनती हैं। पता है आपको? जैसे रबड़ी हुई दूध से बनती है, दूध से छेना बनता है तो सारी बंगाली मिठाइयाँ बनती, दूध से ही मावा बनता है तभी आपके पेड़े लड्डू बनते हैं, है ना? तो सारी दूध व दूध से ही बनती है। किसको पाकर दुनिया बर्तन चट कर जाती है? रबड़ी को पाकर दुनिया बर्तन चट कर जाती है। इसे चट चट के खाते ना हम, मजा आता है ना रबड़ी खाते तो। मुझे फेवरेट है। रसगुल्ले ने क्या कहा? रसगुल्ले ने कहा मुझे चाहते राजा रानी बच्चे बूढ़े और परी। मुझे चाहते राजा रानी बच्चे बूढ़े और परी। जलेबी ने खुद को क्या बताया? जलेबी ने खुद को रसीला बताया, है ना? तो आप पहले क्या करेंगे? सब लर्न करेंगे, फिर मैं धीरे धीरे आपका टेस्ट ले लूंगी। मैं अब वर्कशीट भी भेजूंगी। तब तक